welcome back to the viewers of the channel of the Tutors Concepts Beyond Education. Today we are going to solve the problem set 1 of standard 9th. That is the first chapter of algebra, that is sets. We will solve 6th question, 8th question, 9th question and 10th question. These 4 questions are important because यूनिट टेस्ट में और फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे क्वेश्चंस जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ये 6, 8, 9, 10 से रिलेटेड वो सब क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप ये सब क्वेश्चंस परफेक्टली सॉल्व करना सीख जाओगे तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना आसान हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज 6th one. In a class, 8 out of 28 students have dog as their pet animal at home. 6 students have cat as their pet animal at home. Now in previous videos you have studied that सबसे पहले statements लिखने पड़ते हैं. Let the set of students who have dogs and cats as their pet B, D and C respectively. तो हमने क्या किया, सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास डॉग है वो लोग कौन से सेट में होंगे, डी. सेट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास कैट है एज अ पेट वो कौन से सेट में होंगे, सी. नाउ आई विल शो यू द वेन डायग्राम ऑफ दिस. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट मतलब क्या, द बिगेस्ट सेट which implies it contains all types of students. So there are total how many students, 28. Then you make two sets, D and C. This is D, this is C. Then there are 8 students who have dog as their pets. 6 students who have cat as their pet. Then there are 10 students who have dog and cat both. Now the first thing, इनके पास डॉग और कैट दोनों है तो ये जो 10 नाम है वो इस सेट में भी आएंगे, ये जो 10 नाम है वो इस सेट में भी आएंगे. तो टोटल कितना हो जाएगा, n of d will be what, 18, n of c will be how much, 16. Why? Because ये 8 लोग हैं जिनके पास सिर्फ डॉग है, ये 6 लोग हैं जिनके पास सिर्फ कैट है, 10 लोग ऐसे हैं जिनके पास डॉग और कैट दोनों है पर उनका ये दोनों सेट में नाम नहीं आ रहा है. तो इसलिए हम पहले वो 10 जन को इसमें ऐड करेंगे, फिर फॉर्मूला लगाएंगे जो हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन वाला था. वी नो दैट n of d union c is equals to n of d plus n of c minus n of d intersection c, which implies 18 plus 16 minus 10, which implies 34 minus 10, that is 24. Therefore n of d union c is equal to 24, which implies that there are at least 24 students who have either dog, either cat, or dog or cat both. Now you have to find out those number of students who do not have any of the pets. Therefore number of students who do not have a single pet is equal. ये तो सिंपल सी बात हो गई. 28 स्टूडेंट्स हैं, 28 में से 24 स्टूडेंट्स के पास पेट्स है तो डेफिनेटली आंसर तुमको समझ ही गया होगा. 28 minus n of d union c, which implies 28 minus 24, that is answer is 4. Then as it is a word problem, you will write the statement that there are total 4 students who do not have dog or cat as their pet at home. This is the only question in which this confusion is there. तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान में रखो, प्रॉब्लम सेट में भी और तुम्हारे लेसन वाली एक्सरसाइजेस में भी यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये प्रॉब्लम है कि आपको इंटरसेक्शन वाले नंबर को भी ऐड करना है. तो इसके ऊपर ध्यान दो, इसको ढंग से सॉल्व करो. अगर कुछ डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछो या कमेंट सेक्शन में पूछो. वी विल ट्राई टू सॉल्व इट. टेक अ गुड लुक एट दिस.
Next we come to the eighth sum. Eighth sum comprises of x is equal to set of all quadrilaterals. X is equal to set of all quadrilaterals, y set of rhombuses, then S is set of squares, T is a set of all parallelograms, and V is set of all rectangles. So you have here x is equal to set of all quadrilaterals, and y is equal to set of rhombuses, s is equal to set of squares, t is equal to set of all parallelograms, and v is equal to set of all rectangles. आपको ये बताना है इसमें से सबसे बड़ा सेट कौन सा है, which implies which can be the universal set. अब ये सारे के सारे quadrilaterals हैं, सारे के सारे इस पर्टिकुलर सेट में आएंगे. x can be considered as universal set. यूनिवर्सल सेट हो गया मतलब ये सब इसके सबसेट होंगे. y is a subset of x, s is a subset of x, t is a subset of x, and v is a subset of x. एक चीज हो गई, या जो छोटे छोटे सेट्स थे वो बड़े वाले सेट के सबसेट हो जाएंगे. फिर एक और बात, अब आता है तुम्हारा इनका 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 इंटर रिलेशन. इंटर रिलेशन आएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, सबसे पहले सेट ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर के सारे साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रोमबस के भी सारे साइड्स को कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रोमबस के एंगल्स लोग होते हैं. हो सकता है रोमबस के एंगल सब 90 डिग्री पे हो, तो फिर ये भी कह सकते हो S इज सबसेट ऑफ V, क्योंकि ऑफ कोर्स हर एक स्क्वायर एक रोमबस होता है, पर हर एक रोमबस एक स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि रोमबस के साइड्स बाइसेक्ट करते हैं और प्लस रोमबस के साइड्स रोमबस थोड़ा टिल्टेड होता है, स्क्वायर नहीं होता है. तो बस यही फर्क है. फिर तुम्हारा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल वाला, V is a subset of T. पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों के अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ये एक. फिर बाद में और क्या आ सकता है, एक और चीज, S is subset of T. S subset of T, square is a subset of T. स्क्वायर के भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, स्क्वायर में भी साइड्स पैरेलल होते हैं, तो फिर बाद में 90 90 की वजह से 180 हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से. फिर y is a subset of T. Y is a subset of T. Set of rhombus is subset of all parallelograms. रोमबस में भी पैरेलल साइड्स होते हैं, अपोजिट पैरेललोग्राम में भी होते हैं, बस रोमबस में बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स पैरेललोग्राम में नहीं करते. ये सबसे छोटा सबसेट है. ये जो इंटर रिलेशन है आपके S और V, मतलब क्या, स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच, रोमबस और रेक्टेंगल के बीच, और स्क्वायर्स और पैरेललोग्राम के बीच, ये उसका रिलेशन है, उसके हिसाब से वो सबसेट है. अगर इसमें कुछ डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो. टेक अ गुड लुक, वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम. नेक्स्ट इज द ninth sum. Ninth sum is very easy. If M is any set, M is any set, you have to find M union phi and M intersection phi. This sign is called as phi, F I phi. It's also a Latin or Greek word.
तो आपको ये बताना है कि m कोई भी एक सेट हो सकता है. सपोज आई जस्ट अज्यूम m is equals to 1. You have to show what will be m union empty set, m intersection empty set. First of all, m union empty set will be what? Just 1. Why? ये खाली सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और ये वाला एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है. तो डेफिनेटली एक खाली सेट और एक सेट में जिसमें एलिमेंट है उन दोनों को जोड़ोगे तो वही एलिमेंट वापस आएगा, विच इम्प्लाइज वी विल अगेन गेट m, देन m इंटरसेक्शन empty. ये एक खाली सेट है, इसमें एक एलिमेंट है. खाली सेट और एक एलिमेंट वाले सेट में कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर से तुम्हारा क्या आएगा? empty. दिस इज अ नॉट अ ट्रिकी क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन तुमको लगभग 2 मार्क के लिए आता है, पर स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें करने का क्या है. इफ m इज एनी सेट, m इज एनी सेट का कुछ वो नहीं है, ट्रिकी वर्ड नहीं है. आप m इज इक्वल टू 1 जैसे मैंने यहाँ लिया है, आप 1 से लेकर 10 तक ले सकते हो. आप m को सिर्फ 0 भी ले सकते हो, मतलब इज इक्वल टू, समझो m इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ लिया हो, तो अगर मैं यहाँ पे m इज इक्वल टू एक एलिमेंट जो 0 है अंदर, 0 भी लूंगा तो मुझे सेम ही आंसर आएगा. यहाँ पे 1 की जगह 0 आएगा, यहाँ पे फिर से आंसर empty ही आएगा. So don't try to get tricked by such easy questions. Just pay attention to it. थोड़ा patience रखने का और ध्यान से सोचने का कि क्या करना है. Next, 10th question. 10th question is a bit tricky. You have u, then there is a, there is b, 2 3 2 3 7 1 5 10 8 9 10 8 9 11 4 30. ये तुम्हारे को वेन डायग्राम दिया हुआ है, तुम्हें वेन डायग्राम दिया है, तुमको फाइंड आउट करना है u a b a union b and a intersection b. फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे. तो ये बड़ा वाला रेक्टेंगल जो है वो आपका यूनिवर्सल सेट है. इसमें जितने एलिमेंट्स वो सब लिखने हैं. 1 2 3 4 5 6 नहीं दिख रहा है फिलहाल. 1 2 3, इफ लेट मी सी इफ आई हैव मिस्ड इट. इसमें आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9 10 11 30. लेट मी चेक इफ आई एम करेक्ट. 1 2 3 4 5 6 नहीं है, 7 8 9 10 11 12 नहीं है, 30. There goes our universal set. Then you have to find out A. This circle contains the set A, which implies 2 3 7 1 and 5. 2 3 7 1 and 5. Then you have to find out B, which is this small circle, which contains 1 5 10 8 9. Then you have A union B. A union B आप देख के बता सकते हो. अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, पर अगर यूनियन देखने जाओगे तो यूनियन क्या है? ये जो दो सर्कल है इसके बीच में जितने एलिमेंट्स है, ये दो आउटर बाउंड्रीज ले लोगे तो इसमें जितने एलिमेंट्स है सिर्फ वही आएंगे. जो क्या क्या है आपका 2 3 और 7 1 और 5 10 8 and 9. जो लोग नए अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 1 5 मैंने 2 बार इसलिए नहीं लिखा है बिकॉज सेट के डेफिनेशन के हिसाब से अगर एक कलेक्शन बनता है तो वो कलेक्शन यूनिक होता है. यहाँ पे 1 और 5 मैं 2 बार लिख दूंगा तो दो एलिमेंट्स ऐसे हो जाएंगे जो यूनिक नहीं रहेंगे, वेल डिफाइंड नहीं रहेंगे. तो इसलिए यहाँ पे हर एक बार कलेक्शन में हर एक टर्म सिर्फ एक ही बार आता है. देन देयर इज ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी में तुम्हारे पास जो दो सर्कल का कॉमन रीजन है जिसमें क्या क्या नंबर है 1 और 5 वही आएगा, क्योंकि ये जो पार्ट है वो इस सर्कल में भी है और ये जो पार्ट है वो इस सर्कल में भी है. जो नंबर्स है वो इस सेट में भी है और इस सेट में भी है, इसलिए तुम्हें आंसर 1,5 आएगा. तो आज के लिए बस इतना ही. ये थोड़े हार्ड और थोड़े इजी क्वेश्चंस थे
जो आपको सॉल्व करने हैं घर पे बैठ के आप MCQs सॉल्व करने की कोशिश करो। MCQs बहुत अच्छे हैं, थोड़े माइंड पजल देते हैं। तो अगर आप MCQs सॉल्व करो, अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अगर आपको कुछ डाउट है जो व्हाट्सएप पर है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।